when God was with him जब परमेश्वर यूसुफ के साथ था and he was so successful, और यूसुफ ने इतनी उन्नति he पाई, was so prosperous, उसने इतनी उन्नति पाई, he gained so much of wealth, उसके पास काफी सारा धन he आया, gained everything, every blessing, उसके पास सारी आशीषें थी, even though the situations were wrong, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना थी, but he was blessed. पर फिर भी यूसुफ आशीषित था। So when God was with him and this could happen with him, अगर परमेश्वर जब यूसुफ के साथ था और यूसुफ के साथ ये सब हुआ, what about you and me? तो आपके और मेरे लिए क्या? He is in you. वो आपके अंदर है, Christ in you, यीशु मसीह आपके अंदर, the hope of glory. वो आशा है। Amen. Today I'm going to talk from the life of Joseph to all of you. मैं आज यूसुफ के जीवन के द्वारा मैं आपसे शेयर करूंगी। You must have heard this story many times, आपने इस कहानी को काफी बार सुना होगा, but I believe पर मैं विश्वास करती हूँ that today, as I share what God has spoken to me, what Holy Spirit has taught me, आज जब मैं यूसुफ की कहानी से आपको बताऊंगी जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है, you will be able to relate to it. आप उस चीज को समझ पाओगे और अपने जीवन से उसे रिलेट कर पाओगे And the Holy Spirit will speak to you. और पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। He will touch every corner of your heart which you thought was hidden, but He will touch that point and He's going to show you the way over there. जो भी चीज है आपके हृदय में छुपी हुई है, पवित्र आत्मा उन सारी बातों को स्पर्श करेगा और उनको लाइट में लेकर आएगा। He will speak to you. वो आपसे बात करेगा। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Are you ready to receive what God has kept for you? क्या आप तैयार हो वो पाने के लिए जो प्रभु ने आपके लिए रखा है? Hallelujah. Can we just give a clap offering to God? Can we just say hallelujah? Thank you, Jesus. Can you lift your hands and say, Lord, I'm ready to listen. अपने हाथों को उठाइए, कहिए प्रभु मैं तैयार हूँ आपके वचन को सुनने Open के my लिए। ears, O Lord. मेरे कानों को खोल प्रभु, Open my heart, O Lord, मेरे हृदय को खोल प्रभु, to receive वो पाने के लिए what you have kept in store for me. जो तूने अपने पास रखा है मेरे लिए। Amen. ईमान। So let us turn our Bibles to Genesis chapter 37. We are seeing the story of Joseph, हम यूसुफ की कहानी को देखते हैं, the son of Jacob. याकूब का जो पुत्र है। So Jacob had 12 sons. याकूब के पास 12 बच्चे थे, One of them, उसमें से एक जो था his most beloved one, वो सबसे प्यारा बेटा था उनका, from his wife Rebecca. जो रिबेका उनकी पत्नी थी उनके द्वारा। So Joseph was the most beloved of all the 12 brothers that he had. वो 12 बच्चों में से याकूब का सबसे प्यारा बेटा यूसुफ था। And Jacob loved him so much याकूब उससे इतना प्यार करता था that he made a special tunic for him. कि याकूब ने एक खास वस्त्र यूसुफ के लिए बनाया था। If you read in other translations of the Bible, अगर आप दूसरे ट्रांसलेशंस में पढ़ोगे तो so it is said as ornamented garment, a robe. वचन वहाँ पे कहता है कि उसे बहुरंगी वस्त्र दिए गए थे। So here is Jacob and his 12 sons, तो यहाँ पे याकूब है और उसके 12 बच्चे हैं and he makes this wonderful robe, और वो एक प्यारा सा वस्त्र बनाते हैं and he calls Joseph, come here, और वो यूसुफ को बुलाते कि यूसुफ तो इधर आ, and he gives him this garment. और वो वस्त्र वो यूसुफ को देते He हैं gives him this robe. और वो वस्त्र वो यूसुफ को देते It's हैं। an ornamented, beautiful garment. वो काफी सुंदर सा वस्त्र था And his brothers are standing looking at him, और उनके यूसुफ के जो भाई थे वहां रुक के देख रहे थे and something stirs up in their heart. और उनके हृदय में कुछ होने लगा। They're thinking, what is so special in him that the father loves him so much? वो सोचने लगे इसमें ऐसा क्या खास है कि पिता उससे इतना प्रेम करता है। Envy somewhere birthed in his heart. जो जलन थी वो भाइयों के हृदय में पैदा होना शुरू हो गई And Joseph knew it. और यूसुफ को ये पता था। And then later on in the story, we see in verse 4 onwards, in verse 9, God is speaking to Joseph in dreams. और अध्याय में जब आप आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि परमेश्वर यूसुफ से सपनों में बात कर रहा है। In the first dream that Joseph saw, पहला जो सपना यूसुफ ने देखा, he sees that his sheaf of grain is standing right upright, उसका जो था वो राइस का शीव था वो रुका हुआ था and his brother's sheaves are all bowing to him. और जो भाइयों के जो प्लांट्स थे वो झुके हुए हैं उसके तरफ। That little boy gets excited. और वो जो छोटा बच्चा है वो बहुत उत्साहित हो जाता है। He goes and he shares his heart with his brothers. वो अपने हृदय को उसके भाइयों के साथ बांट देता है। He knows they are jealous of him, वो जानता था कि वो उससे जलन रखते हैं but still he goes and he tells them, और फिर भी वो जाके उन्हें बताता है, look, this is what I dreamt of. देखो देखो ये सपना मैंने देखा। Again, further, और आगे he again has another dream.
और एक और ड्रीम सपना यूसुफ को आता है, in which he sees that the sun, moon, and all the stars, 12 stars, are bowing before him. उसने सपने में देखा कि जो तारे हैं, जो सन है, जो मून है, वो उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। And he tells his brother again, और वो फिर से जाके ये सपना भाइयों को बताता to है his father too. और पिता को भी बताता है, And they all get very upset. और वो सब सुन के दुखी हो जाते हैं। What do you mean? We are going to bow in front of you? वो सुन के दुखी हो जाते हैं कि हम तेरे सामने दंडवत करेंगे। The father and the mother is going to bow in front of you. What do you think of yourself? माता पिता तेरे सामने झुकेंगे, तू क्या सोचता है खुद के बारे में? So this is what people or the enemy keeps trying to put in your head. यही बातें हैं जो शत्रु आपके दिमाग में डालता है What do you think of yourself? कि तू खुद के बारे में सोचता क्या है, You're going to be very big? कि तू बड़ा बन जाएगा, You're going to do very great things in your life? कि आप महान चीजें करने वाले हो अपने जीवन में। You are just that little boy तू एक छोटा सा बच्चा है who is a dreamer, जिसको सिर्फ सपने आते हैं, who only dreams about big things. जो सिर्फ सपने देखता है बड़े चीजों के You're लिए। not going to be able to do anything. तू कुछ नहीं कर सकता। So then later on in the story, जब आगे हम बढ़ते हैं, we see in verse 13. हम 13वें वचन में देखते हैं, Now his brothers are gone. They are taking care of their flock. जो भाई थे वो चले गए और वो अपने जो भेड़ बकरी थे उनका ख्याल रख रहे थे। Jacob tells Joseph, तो याकूब पिता अपने बेटे यूसुफ को कहते हैं कि, do you know that your brothers are tending their flock over here? You should go and see them. वो कहते हैं कि तेरे भाई अपने भेड़ों का ख्याल रख रहे हैं, तू जा उन्हें देख कर आ। So we see over here हम देखते हैं यहाँ पर that Jacob sent Joseph. कि याकूब ने यूसुफ को भेजा। Joseph didn't go on his own, यूसुफ खुद नहीं गया, but the father sent Joseph. कि पिता ने यूसुफ को भेजा। And Joseph said, yes, father, I will go. यूसुफ ने कहा हाँ पिता मैं जाऊंगा, And he goes. और वो चले जाता है। He goes, he knows that they have gone to Shechem, so he goes to Shechem. यूसुफ शेकेम नाम की जगह पर चले जाता है And he searches for his brothers over there. और वहाँ पे अपने भाइयों को ढूंढना शुरू करता है। And then he meets a man, he inquires about his brothers. वो एक व्यक्ति को मिलता है और पूछता है कि उसके भाई किधर हैं। Then that man guides him to Dothan. तो जो वो व्यक्ति है वो उन्हें एक दूसरे जगह के बारे में बताता है And Joseph goes over there. और यूसुफ वहाँ चली जाता है। So all I want to tell you over here is, मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, when the father sent Joseph, जब पिता ने यूसुफ को भेजा, Joseph obeyed. यूसुफ ने उस आज्ञा को माना And he took efforts to do what the father told him to do. और उसने निर्णय लिया और उसने एफर्ट लिया कि मैं जाऊंगा। He did what the father told him to do. He took efforts. उसने वो किया जो पिता ने उससे करने के लिए कहा। And still we see और फिर भी हम देखते हैं that when his brothers see him from afar, कि जब भाइयों ने यूसुफ को आते हुए देखा दूर से, they start conspiring against him. वो एक सोचने लगे कि इसके खिलाफ हम कुछ कर सकते हैं। So many times it happens in our condition too. हमारे साथ भी कई बार ऐसे होता है We feel we are doing everything right. कि हम सोचते हैं कि हम सब सही कर रहे हैं, We are just doing what the father has told us to do. हम वही कर रहे हैं जो पिता ने हमसे करने के लिए कहा है। Whatever is wrong, I'm not touching it. जो भी गलत बातें मैं उन्हें नहीं कर रहा या नहीं छू रहा, I'm not sinning it. In our sight, we are thinking so. हम अपनी नजर में ये सोचते तो हम सही कर रहे हैं। Then why is this wrong thing happening with me? तो ऐसा क्यों होता है कि गलत चीज हमारे साथ क्यों हो रही होती है? Why am I in this mess? हम सोचते हम उस गलत परिस्थिति में क्यों हैं? Why doesn't my life get settled? मेरे जीवन एक स्थिर जगह पर क्यों नहीं आती? Why don't I understand what I have to do with my career? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं मेरे करियर के साथ क्या करूं। Why is my business in a loss? ऐसा क्यों है कि मेरा व्यवसाय नीचे जा रहा है, लॉस में जा रहा है? Why is it that my health is so affected? ऐसा क्यों है कि जो मेरा शरीर है, जो मेरी स्वास्थ्य है, वो घटते जा रही है? You know what? आप जानते हैं क्या? We have taken some foolish decisions in our past, हमने अपने जीवन में पास्ट में ऐसे निर्णय लिए हैं जो गलत थे। in our present, हमारे अभी के टाइम में भी though it may seem to us that it is correct, हमको शायद लग रहा होगा कि हम सही निर्णय ले रहे हैं। as Joseph went and told his brothers about his dream, he didn't think that he's doing anything wrong. Was it anything wrong? यूसुफ ने अपने भाइयों को जाके जब सपना बताया तो उसे लगा कि वो सही कर रहा है, पर क्या उसने सच में ये सही किया था वहां पर? So there are some foolishness that we have done. कोई ऐसी मूर्ख वाली बातें हैं जो हम करते हैं जीवन For में। example, उदाहरण के तौर पे you're struggling with weight issues. उदाहरण के तौर पे अगर आपका वजन बढ़ रहा है,
So there are some wrong decisions, unhealthy eating habits and unhealthy lifestyle that you have decided to do in the past. ऐसा हो सकता है कि भूतकाल में आप जिस तरीके से खाते पीते थे, वो जो निर्णय आपने लिए थे खाने पीने के, वो गलत लिए थे आपके शरीर के लिए। And now you're standing और अभी आप रुके हो, and you're praying with all your might. आप प्रार्थना करो पूरे मन से I rebuke every fat to leave my body. कि जितना भी वजन है वो निकल जाए मेरे शरीर से। I bind every fat, every spirit that is causing fat in my body to leave. वो हर आत्मा जो मेरा वजन बढ़ा रहा है, मैं उसको बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से। If only you could have decided to live healthy, अगर आपने पहले निर्णय लिया था कि मुझे स्वास्थ्य जीवन जीना है, to eat healthy, कि जो मैं भोजन खाऊंगा वो अच्छा खाऊंगा, use the wisdom that God has given you to decide, जो बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है उसका इस्तेमाल करे होते you might have not ended in weight gain. तो आपकी परिस्थिति ऐसे नहीं होती और आपका वजन बढ़ता नहीं। Imagine you have to come to church आप सोचिए आपको कलीसिया आना है and there's a lot of traffic on the road. You know these are the peak hours. और आप जब कलीसिया आते हो तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस वक्त पर होती है। You know it's going to take you 30 minutes to reach church. आपको पता है कि आपको 30 मिनट लगने वाले कलीसिया पहुंचने के लिए, And you decide, I'll get ready soon, and 15 minutes to 10 when the church starts, I'll go. I'll go 15 minutes early. और आप ये सोच लेते हो कि 15 मिनट चर्च शुरू होने से पहले मैं चले जाऊंगा वहां पर। When you know it is going to take 30 minutes, जब आप जानते हो कि 30 मिनट लेने वाला है, there is traffic on the road, कि ट्रैफिक भी होने वाला है, and still you choose to just leave 15 minutes early. और फिर भी आप सोचते हो कि 15 मिनट पहले मैं अपने घर से निकलूंगा, Whose fault it is? तो किसकी गलती है? Is it God who's putting you into that situation? ऐसा है क्या कि परमेश्वर ने आपको उस परिस्थिति में डाला? No. नहीं, It is our foolishness. हमारी मूर्खता होती है वो It is our foolishness. हमारी मूर्खता होती है। You come to church, you're standing, worship is going on. आप आते हो, कलीसिया में रुकते हो और आराधना चल रही होती है। First of all, you have landed up late, पहले तो आप लेट आ गए चर्च में, and the worship team is worshiping in zeal. और आराधना की जो टीम है यहाँ पे आराधना कर रही है। There it is your decision to stand in worship and worship Him in truth and spirit. उस वक्त आपका खुद का निर्णय होता है कि आप आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। Nobody is going to force you like stand over here and worship. कोई भी आपको बोलेगा नहीं कि आपको करना ही आराधना है। Worship is going on, आराधना चल रही है, but it has to be your decision to worship in truth and spirit. पर निर्णय आपका होना चाहिए सच्चाई और आत्मा में आराधना करने के लिए। So whenever you're thinking like this, और जब कभी आप ऐसी बातें सोच रहे हो that I'm doing everything good, I'm doing everything right, and still everything is going wrong with me, जब आप ये सोचते हो कि मैं कितनी सब चीजें सही कर रहा हूँ पर फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, somewhere we have done some foolishness. ऐसे हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमने मूर्ख वाली बातें की है। But don't worry. पर आप चिंता ना करिए, The moment you realize, जिस वक्त आपको ये समझ आ जाता है, I just want to tell you, मैं आपको बताना चाहती हूँ run to the Father. कि पिता के पास दौड़े। When a small child makes any mistake, जब एक छोटा बच्चा कुछ गलती करता है, when my Adele does anything, he just does anything silly, he'll throw things or he'll break something, जब उनका बेबी अडेल कुछ तोड़ देता है या कुछ खराब कर देता है, the first thing he does is, वो पहली चीज जो करता he है comes running to me. वो मेरे पास दौड़ के And he आता tells है me, Mama, I did this. और मुझे कहता है मम्मी मैंने ये चीज कर ली, I threw this thing in anger away. मैंने गुस्से में ये चीज को फेंक दिया। That is what we have to do. यही चीज हमें भी करनी है, Just like a small child, एक छोटे बच्चे के जैसे keeping everything aside. हर एक चीज को बाजू में रखे। When you know you've messed up, जब आप जानते हो कि आपने कुछ चीज खराब कर ली है, when you don't understand why this thing is happening with you, आप जो समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, instead of questioning God and blaming everybody, ऐसे परमेश्वर को दोष देने से पहले just run to Him. उसके पास दौड़ के चले जाओ। He's a good Father, वो एक भला पिता है and He's just waiting. और वो इंतजार कर रहा है When my child will run to me, कि कभी मेरा बच्चा मेरे पास when आएगा, my child will understand my love for Him. कभी मेरा बच्चा मेरे प्यार को समझ पाएगा। Yes, so let's again go back to the story of Joseph. यूसुफ की कहानी में फिर से जाते हैं। So now Joseph is coming. अभी यूसुफ आ रहा है, His brothers are standing at a faraway distance, उसके भाई दूर रुक के देख रहे हैं and they're looking at him. और वो देख रहे हैं यूसुफ को आते From हुए, very far, वो दूर से देख रहे हैं उसको, they see his tunic, वो उसके वस्त्र को देखते हैं and they recognize him from his tunic. और वो समझ लेते हैं कि यूसुफ ये वस्त्र पहन के आ रहा है। Ah, look at that garment. We know this garment. भाइयों कह रहे थे कि ये वस्त्र को तो हम पहचानते हैं, This is the same thing that the father gave Joseph. ये वही वस्त्र है जो पिता ने यूसुफ को दिया था। Look at that dreamer boy is coming here. वो सपने देखने वाला बच्चा आ रहा है And they began to conspire against him. और वो ये बातें करना शुरू करते कि उसके खिलाफ क्या कर सके हम। They began to think, now how are we going to kill this guy? We don't want him.
अभी भाई ये सोच रहे थे कि अभी हमको ये चाहिए नहीं, अभी हम इस भाई को मार देंगे। You imagine they are his real brothers, his own blood, आप ये सोचिए कि वो उसके सगे भाई है and they are ready to kill him. और वो तैयार है उसको मारने के लिए। And one from them, Reuben, और जो एक भाई था रूबन, he intentionally tells them, वो जानबूझकर उनसे कहता है, let's not kill this boy. उसे मारते नहीं है, Let's put him in a pit यूसुफ को उस गड्ढे में डाल देते हैं and we'll tell his father that some animal tore him apart, और हम पिता को जाके कहते कि कोई जानवर आया और उसको खा के उसने मार दिया, so that we are not judged for the blood of this guy. ताकि उसके खून का जो दोष है वो हम पे नहीं आए। See, when we are in crisis, these are two kinds of people that are around us. जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते तो दो प्रकार के लोग होते तब। People who just don't care, कोई लोग होते जो परवाह नहीं करते बिल्कुल भी, even though they are your own blood. चाहे वो आपके परिवार वाले ही क्यों ना हो, On the face, they are very good to you, चेहरे पर वो काफी अच्छे होते आपके साथ, but behind the back, पर पीठ पीछे in their mind, उनके विचारों में they're conspiring against you. वो ये योजना बना रहे हैं कि आपके खिलाफ क्या कर सके। In short, I would like to say, छोटे में मैं कहूँगी the आपसे, enemy is trying to conspire. जो शत्रु है वो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, But then there is one kind of people, पर दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, the people like Reuben in this story, रूबेन के जैसे लोग होते हैं, who intentionally decide to care. वो जानबूझकर ये निर्णय लेते कि वो आपकी परवाह करेंगे। He intentionally tells them to put Joseph in that pit, वो जानबूझकर कहते कि यूसुफ को खड्डे में डाल देते हैं, so that once they are gone from there, ताकि जब भाई छोड़ के चले जाएंगे उस जगह को, he will take Joseph and give him back to the father. ताकि रूबेन यूसुफ को उस गड्ढे से बाहर निकालेगा और फिर पिता के पास लेके जाएगा। So I would like to encourage each one of you here. मैं आप सबको प्रोत्साहन करना चाहती हूँ, When you know your neighbor sitting next to you आप जब जानते हैं कि जो पड़ोसी में आपके साथ बैठा है is in a difficult time, वो एक कठिन परिस्थिति के द्वारा जा रहे हैं, care intentionally. उनके लिए जानबूझ के सोच समझ के परवाह कीजिए उनके लिए। Though you don't know what they are going through, शायद आपको नहीं पता होगा वो किस परिस्थिति के द्वारा जा रहे होंगे, but know that he is your brother, पर आप जानिए कि वो आपके भाई है, brother in Christ. यीशु मसीह में वो आपके भाई है। Show that love and compassion and care for them. वो प्यार और वो करुणा को उनके लिए दिखाइए, Don't just turn your face away from them. आपके चेहरों को उनसे मोड़ ना लीजिए। You never know what one word of love that you will speak to your neighbor, आप ना जानते हुए जब एक प्यार का वचन आपके भाई से बोलोगे, it will change their life वो उनके जीवन को बदल सकता है completely. पूरी तरीके से। So now Joseph, अभी यूसुफ जो था, he's coming to his brothers and he's thinking he's excited to meet all of them. यूसुफ जब भाइयों के पास आ रहा था तो वो बहुत खुश था और उत्साहित था। He's expecting love from them वो अपेक्षा कर रहा था कि वो प्यार देंगे उसे, because he's meeting after a long time. He must be expecting that my brothers are just going to take me, hug me. We're going to have a good time with my brothers. यूसुफ काफी समय के बाद अपने भाइयों से मिल रहा था तो उसकी अपेक्षा थी कि भाई मुझे गले लगाएंगे, प्यार करेंगे, बैठेंगे मेरे साथ, But nothing like that happened. पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Why did that happen? ऐसा क्यों? Because we most of the times keep our expectations from man. ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार हमारी अपेक्षा लोगों से होती है, मनुष्य से और परमेश्वर से नहीं होती। Yeah, we are expecting people to show us love, हम अपेक्षा करते हैं लोगों से कि वो हमें प्रेम दिखाएंगे, to show us acceptance. वो हमें स्वीकारेंगे। We expect people to approve our works. हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे काम को वो स्वीकारेंगे। We expect them to be happy with our success. हम अपेक्षा करते हैं कि लोग हमारे उन्नति से खुश हो जाएंगे। We expect help from people, हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, whereas we should be expecting all of this from God. जबकि ये सारी अपेक्षाएं हमें परमेश्वर से करनी चाहिए। The voice of people takes over so much over us जो लोगों की बातें होती है वो हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है that we cannot hear the voice of God. कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। We hear people calling, हम लोगों की आवाज़ों को बुलाते हुए सुनते हैं you're a dreamer, कि तू सपने देखने वाला है, you're good for nothing, तू किसी भी बात के लिए अच्छा नहीं you're है, not worthy. तू योग्य नहीं है। You hear a voice within you, you're a sinner. आप एक आवाज़ सुनते अपने हृदय में कि तू पापी है, कुछ नहीं हो सकता है. nothing will happen। But at that time, पर उस वक्त I want you मैं चाहती हूँ to understand this कि आप समझें and do this. और ये चीज़ करें। Whenever you hear these voices coming to you, जब कभी भी आप ये बातों को अपने दिमाग में आप सुनते हो, turn your focus. आपके जो फोकस को है, आपके ध्यान को हटाना है। Turn your focus from these voices
अपने ध्यान को इन आवाजों से हटाना to है, the voice of God, परमेश्वर की आवाज पे ध्यान to the लगाना promises है, of God, उसके वचनों पे लगाना है what God has to say about me in this state. कि परमेश्वर को मेरे बारे में इस परिस्थिति में क्या कहना है। When you think you're a sinner and you're just good for nothing, जब आप सोचते हो कि मैं पापी और मैं कुछ भी भला नहीं कर let सकता, us read Ephesians chapter 2 verse 6. आइए इफिसियों 2:6 पढ़े। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। If you think you're a sinner, अगर आप सोचते हो कि आप पापी हो, know that आप जानिए Jesus died for you. कि यीशु मसीह आपके लिए मरे, He cleansed you. उसने आपको साफ किया He है। gave you this gift of salvation. उन्होंने आपको सैल्वेशन का तोहफा दिया है। He's justified you as righteous, यीशु मसीह ने आपको धर्मी बनाया है and He's made you sit in heavenly places. और यीशु मसीह ने आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। Ephesians 2:8 says, "By grace you have been saved, not by your works. Nothing you do could earn salvation. It is a gift from God." क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Amen. So if you're thinking I'm a sinner, I've done everything wrong, etc., 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 अगर आप ये सोच रहे हो मैंने पाप किया है, ये किया है या कितनी सारी चीजें गलत की है, don't worry. आप चिंता ना करिए। It is not your works, ये आपके काम नहीं है, but the heart of God पर परमेश्वर का हृदय है, and the grace of God उसका अनुग्रह है that you have salvation, कि आपके पास उद्धार that है, you are justified as righteous. कि आप धर्मी बनाए गए The हो। moment you think you're of no value, जिस वक्त आप सोचते हो कि आप में कोई भी वैल्यू नहीं है, क्षमता नहीं है, just turn आप मुड़िए and say, और कहिए। Isaiah 43:1 says, यशाया 43:1 कहता है I have redeemed you and you are mine. कि मैंने तुझे छुड़ाया है, तू मेरा है। We are God's. हम परमेश्वर We के are हैं, His property. हम उसके हैं, We belong to Him. हम परमेश्वर के हैं। Psalms 39:14 says that I am fearfully and wonderfully made. भय और आश्चर्य से बनाया गया हूँ। The same chapter, verse 15 says वही अध्याय का 15वां वचन कहता है, that He has skillfully shaped me, वचन कहता है कुशलता से रचा गया हूँ, and from nothing you made something. कुछ नहीं से उसने कुछ तो बनाया है। Again in verse 17 it says, और 17वें वचन में फिर से कहता है, You think of me constantly, तू हमेशा मेरे बारे में सोचता रहता है, and every moment हर क्षण में He cherishes us in our thoughts. तू अपने विचारों में हमारे लिए खुश हो जाता है। Can you imagine? क्या आप सोच सकते हो There is somebody कि कोई तो भी है who is every moment जो हर वक्त हर क्षण just thinking of you, वो सिर्फ आपके बारे में just सोचता thinking है, of you. वो सिर्फ आपके लिए What सोचता am है I going to do for my son? कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं, How am I going to do the best for my daughter? कि मैं मेरी बेटी के लिए सबसे उत्तम चीज क्या करूं। I love this person so much, परमेश्वर कहता है कि मैं इस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता हूं and God is cherishing you. और परमेश्वर आप में आनंद लेता है। Do you think when somebody cherishes, that person thinks about all the mistakes that you have done? क्या आपको लगता है जब कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है, आप में आनंद लेता है, तो वो आपकी गलतियों को याद करते रहता है? A person will always cherish good memories. जो व्यक्ति आपके बारे में सिर्फ आनंद की बातें सोचता है, God cherishes in you. परमेश्वर आप में आनंद Know लेता that. है। आप ये जानिए And have that faith. और ये विश्वास रखिए। Don't go into guilt and condemnation. आप गिल्ट में नहीं जाइए या बुरी फीलिंग्स में नहीं जाइए। Just know आप ये जानिए that God loves you कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है and He loves to spend time with you. He loves to look at you, to hear from you. और उसको पसंद है आपके साथ वक्त बिताना और आपकी बातों को सुनना। When you feel that nobody is caring for you, जब आप ये सोचते कि आपकी कोई परवाह नहीं करता, 1 Peter 5:7 says, Cast all your burdens unto Jesus. पहला पतरस 5:7 कहता है कि सारी चीजें जो आपको चिंता देती है वो मुझ पे डाल दे And He will give you rest. और वो आपको शांति He देगा। cares for you. वो आपकी परवाह करता है। Imagine a child going to school आप ये सोचिए एक बच्चा स्कूल जा रहा है and the teacher comes and takes a big list and reads out names. और टीचर एक पेपर लेकर आती है और सबके नाम पढ़ना शुरू करती है। And teacher takes the name of a child and says that you have not paid your fees, so I will not allow you to sit in the exam. You need to pay your fees before the exam begins. और टीचर वो नाम पढ़ते वक्त एक बच्चे का नाम लेती है और कहती है कि तूने फीस को नहीं भरा है तो एग्जाम में तू बैठ नहीं सकता। So what do you think that child will do? आपको क्या लगता है वो बच्चा क्या करेगा उस वक्त? Will he start, oh my God, now how am I going to pay the fees? क्या वो बच्चा ऐसे सोचेगा अरे मैं फीस अभी भरूं तो कैसे भरूं? What am I going to do to get all this money? मैं क्या करूंगा ये पैसा लाने के लिए? What would be the first instinct reaction of that child?
बच्चा पहली चीज क्या करेगा? He will run home. वो घर को भागेगा, He will run to his father वो उसके पापा के पास and he'll जाएगा tell him, और वो पापा को बताएगा Papa, this is what teacher has said. कि पापा टीचर ने ये बात कही, Done. हो गया, And he goes away और वो चले जाएगा and he'll बच्चा start playing. और वो खेलना शुरू हो जाएगा। Will he worry about it? क्या वो बच्चा चिंता करेगा? So what did this child do? तो बच्चे ने क्या किया? He just took his burden. उसने अपने बोझ को लिया, He took what was on his head, on his heart, जो उसके हृदय में था उसने उसको लिया and he went and told his father. और उसने पिता को जाके बताया। This is what we have to do. यही चीज हमें भी करनी Just है। run to him and tell him. जिस भागिए और परमेश्वर को बताइए, Put your burden on him. अपने बोझ को उस पर डालिए। He is able to take care of everything. उसमें क्षमता है आपके हर चीज का ख्याल रखने के So all लिए। I want to say is change your focus from the voice of people मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके ध्यान को लोगों की बातों से हटाइए and change it to the voice of God. और परमेश्वर के ऊपर आपका ध्यान लगाइए। Yes. Further we see that the tunic that Joseph had, जो वस्त्र यूसुफ के पास था, what did the brothers do with him? भाइयों ने उसके साथ क्या किया? They stripped off his tunic उन्होंने उसके वस्त्रों को निकाला, and they killed an animal and put the animal blood on his tunic उन्होंने एक जानवर को मार दिया और उसके खून को उस वस्त्र पर लगा दिए and they threw him into this pit. और यूसुफ को गड्ढे में फेंक दिया। So this robe that Joseph had is now drenched in blood जो वस्त्र यूसुफ का था अभी वो खून से भर गया था and his story is like almost finished, और यूसुफ की कहानी वहां पर खत्म हो जाती है, right? है ना? That is what he must be feeling. उसने ऐसा सोचा उस वक्त शायद। He must be crying for help. यूसुफ शायद वहां पे रो रहा था कि कोई मदद करने आए मेरी, Somebody take me out. कि कोई तो मुझे बाहर निकाले, But that didn't happen. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। They just stripped off his tunic, they stripped off his robe. ऐसा हुआ कि उसके वस्त्र निकाल दिए गए। See, the devil stripped off Joseph's robe. शैतान ने उस वक्त यूसुफ के जो वस्त्र थे वो निकाल दिए, But you know what, in our case, पर आपको पता है हमारे केस में क्या है? Father sent Jesus, his only son. परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, He gave the sacrifice of his only son on the cross, उन्होंने यीशु मसीह का बलिदान दिया क्रूस where पर, he shed his blood. जब पे यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया He rose up on the third day and gave us salvation. और तीसरे दिन पे यीशु मसीह जी उठा और हमें उद्धार दिया। And now, और अभी Isaiah 61:10. यशाया 61:10 कहता Can we है, all read it together? आइए हम साथ में पढ़ेंगे। It says, I greatly rejoice, my whole heart vibrates and shouts of joy in my God, for he has dressed me with his salvation and wrapped me in the robe of his righteousness. मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा मन मेरे परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म के चद्दर ओढ़ दी है, जैसे दुल्हा अपने सिर को गहने से सजता है और दुल्हन अपने गहनों को अपने श्रृंगार करती है। What we see here in this verse, हम क्या देखते हैं इस वचन में? he has dressed us with garments of salvation, कि परमेश्वर ने हमें उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, and he has wrapped me in the robe of righteousness. कि परमेश्वर ने धर्म की चादर से हमें ओढ़ लिया है। So the robe that you are wearing, तो जो वस्त्र आप पहने हुए हो, which your heavenly Father has given, जो आपके परमेश्वर पिता ने आपको दिया है, is not a simple robe like what Jacob gave his son Joseph. वो वैसा वस्त्र नहीं है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया। It is the robe of righteousness that you're wearing. आपके पास जो वस्त्र है वो धार्मिकता के वस्त्र है। And this robe of righteousness, ये जो धार्मिकता के वस्त्र है, no enemy, कोई भी शत्रु, no evil plan of the enemy, कोई भी उसकी बुरी योजनाएं, no people, कोई भी लोग, no thoughts of fear, कोई भी बुरे विचार, nothing, absolutely nothing can strip this off from you. कोई भी चीज ये वस्त्रों को आपसे छीन नहीं सकती। This is your inheritance that God has given you. ये आपका जो इनहेरिटेंस है ये प्रभु ने आपको दिया है। So remember this, तो आप याद करें the devil can't take the robe of righteousness from you. कि शत्रु आपसे आपके धार्मिकता के वस्त्र चुरा नहीं सकता। He can't take your salvation away from you. आपका उद्धार वो आपसे नहीं ले सकता। This is what God has given you. ये परमेश्वर ने आपको दिया है। And he's not given you this because of your good works. और ये परमेश्वर ने आपको आपके अच्छे कामों के लिए नहीं दिया है, He has given you this because he is good. वो इसीलिए दिया गया क्योंकि वो भला है। He is good all the time. वो भला हर वक्त है। In Joseph's case, that animal was killed.
यूसुफ के स्टोरी में ऐसे हुआ कि उस जानवर को मरना पड़ा, That animal was killed and his blood was put on his robe. कि वो जानवर को मारा गया और उसका लहू उस वस्त्र पे लगाया गया। But in our case, पर हमारे इसमें that innocent lamb, जो परमेश्वर का वो that मेमना pure था, lamb, जो परमेश्वर का मेमना था, he was sacrificed for you and me. उसका बलिदान दिया गया था आपके और हमारे लिए, And there is power in his blood और उस लहू में सामर्थ्य है that the enemy cannot conquer. जो शत्रु उस चीज पे विजय नहीं पा By his सकता। blood, यीशु मसीह के लहू के द्वारा by his victory on the cross, जो विक्ट्री यीशु मसीह ने क्रूस पर पाई, you and me have become more than conquerors. आप और मैं विजय से भी बढ़ के हो गए हैं। Amen. आमीन। Say a big amen if you believe that. एक बड़ा आमीन कहिए And do not fear, और आप डरिए ना, no matter what the people are talking about, चाहे लोग आपके बारे में कुछ ही क्यों ना कह रहे हो, no matter whatever big mess you are in. चाहे किसी भी कठिन परिस्थिति में आप क्यों ना हो, Do not fear. आप डरिए नहीं। The most important thing. सबसे महत्वपूर्ण बात है, When we fear, जब हम डरते हैं, it captivates our mind, our thoughts, our heart, everything. डर हमारे विचारों पे, हमारे हृदय पे कब्जा कर लेता है। And 90% of devil's work is done. और जब ऐसा होता है तो 90% शैतान का जो काम होता है वो हो जाता है। He doesn't have to actually do anything. शैतान को कुछ उससे ज्यादा नहीं करना पड़ता। He just puts that thought of lies of fear in your mind. जब शैतान डर के और झूठ के विचार आपके दिमाग में डालता है, Automatically, तब ऐसा हो जाता है we start meditating about it. हम खुद सोचना शुरू हो जाते हैं डर के What विचार am I going to do? कि हम क्या करेंगे। This seems to be impossible, but I'm getting scared now. ये तो बहुत कठिन परिस्थिति है, पता नहीं क्या होने वाला My है। problem is too big. मेरी जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। The loss that I faced in my business is too big. जो लॉस को मैंने अपने व्यवसाय में देखा है वो बहुत बड़ा Too है, big to handle. इतना बड़ा है कि मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता। The reports that the doctor has given, जो रिपोर्ट हमें डॉक्टर से मिलती है it seems to be very, very terrific. वो उसमें बहुत सारी बुरी चीजें लिखी हुई Everything है, seems to be negative. हर एक चीज गलत है। How am I even going to live? मैं जिंदा भी कैसे रहूंगा। Just the thought of fear ये जो विचार है डर का, destroys everything. वो सारे चीजों को खत्म कर लेता है। It doesn't allow you to focus on what God is telling you. ये डर के जो विचार है वो आपका ध्यान प्रभु से हटा लेते हैं। You do get scared. जब आप डरते हो, It's okay. It's okay when you have that feeling of fear, चलता है अगर जब वो डर के विचार आपके पास आते हैं, but don't stay over there. पर उसमें रहना नहीं है। Don't hold on to that thought. उस डर को पकड़ के नहीं रहना है। Immediately capture it. वो डर के विचारों को आपको पकड़ना है। And according to 2 Corinthians 10:5, और दूसरे कुरिन्थियंस 5:8 में कहता है, bring it to the obedience of Christ. वो विचारों को आप यीशु मसीह के आज्ञाकारिता में लेकर I आइए। am not going to fear. मैं डरूंगा नहीं। I do not have the spirit of fear. मेरे पास डर का आत्मा नहीं Amen. I है। have the authority मेरे पास अधिकार over है everything, हर चीज के over ऊपर, every situation, हर परिस्थिति के ऊपर, over every single thing that I'm facing right now. हर कठिन परिस्थिति जो मेरे सामने I है। have the authority. मेरे पास अधिकार I है, have the power मेरे पास सामर्थ्य है, because Jesus is in me. क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर It है। is not me, ये मैं नहीं it is हूँ, not I, ये मैं नहीं हूँ अंदर, it is Jesus in me वो यीशु मसीह मेरे that अंदर gives है me the authority. जो मुझे अधिकार So we देता है। need to know this truth. हमें ये सच्चाई को जानना The जरूरी moment है। your inner man, your inner being knows this truth, जब आपके अंदर के व्यक्ति को ये चीज पता होती है, the truth will set you free वो सच्चाई आपको छुटकारा from every देगी bondage, हर एक बॉन्डेज से, from every fear. हर एक डर से। If we just take an example of this, अगर हम उदाहरण लेंगे एक चीज, let's see the story of Elisha in 2 Kings chapter 6. आइए एलिशा नबी की स्टोरी को हम देखेंगे। In 2 Kings chapter 6, दूसरा राजा 6वें चैप्टर में the story is so ये स्टोरी बताती है that there's a conspiracy going on between the king of Syria and the king of Israel. उस वक्त योजना चल रही थी सीरिया के राजा और इजराइल के राजा के बीच में। So the king of Syria used to plan things how to attack Israel, सीरिया का जो राजा था वो सोच रहा था कि इजराइल के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, and God used to speak through Elisha to the king of Israel. और एलिशा नबी के द्वारा परमेश्वर इजराइल से बातें करता था। So Elisha used to go and tell the king of Israel to take the necessary precautions, or he used to instruct and tell them, guide them. एलिशा नबी राजा के पास जाता था और उसे बताता उसे क्या करना चाहिए, And all the plans of the king of Syria used to get demolished. और ऐसे होता था जितनी भी योजनाएं सीरिया के राजा ने बनाई है वो सब
खाली हो जाती थी, कभी पूरी नहीं होती थी। And the king of Syria came to know that it is this man, Elisha, who is disclosing all my plans to the king of Israel. और सीरिया के राजा को ये पता चला कि एलीशा नबी एक व्यक्ति है जो जाके मेरी बातों को बताता है और मेरे सारे योजनाओं को खत्म कर लेता है। So the king of Syria sends his army to go and find Elisha and finish him. और सीरिया का राजा ढूंढने निकलता है कि ये एलीशा नबी किधर है। So Elisha is on this mountain एलीशा नबी एक पर्वत पर बैठे हैं, with his servant, वो अपने दास के साथ बैठे and हैं his servant comes running to him. और दास उनके पास दौड़ के आते हैं। Master, वो बताते हैं, मास्टर what do we do now? अभी हमें क्या करना चाहिए? This army is coming in front. जो सेना अभी आ रही है हमारे सामने, We are helpless. हमारे पास कोई भी मदद नहीं है। He must be saying like this, we are just so few. वो कह रहे होंगे कि हम तो कितने कम लोग हैं, But this army is so big, it's so vast. पर सेना जो आ रही है वो तो बहुत बड़ी है। They are coming with weapons वो हथियार लेकर आ रहे हैं against us. हमारे खिलाफ। What are we going to do? हम क्या करेंगे? You know what Elisha tells him? आप जानते हो एलीशा नबी ने क्या कहा? Do not fear. डर मत। Sometimes it is important to know what we shouldn't be doing rather than what we should be doing. कई बार हमें ये जानना जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसके बदले कि हमें क्या करना चाहिए। We shouldn't fear. हमें डरना नहीं Do not चाहिए। fear. डरिए नहीं। God is telling you today. परमेश्वर आपसे कह रहा है God is आज। speaking to someone here today. आज परमेश्वर किसी से तो भी ये चीज Do कह not रहा fear, है my child. कि तू डर मत मेरी Do बच्ची, not fear. डर मत। Do not see from the eyes of fear. आप डर की नजरों से बातों को ना See from the देखिए, side of faith. विश्वास के द्वारा बातों को And Elisha देखिए। prays over there. और एलीशा नबी ने उधर प्रार्थना की, Lord, परमेश्वर open his eyes for him to see. कि मेरे दास की आंखों को तू And what खोल। did that servant see? और दास ने क्या देखा? He saw many chariots, और दास ने देखा वहाँ पे काफी सारे many सेना खड़ी horses, थी, a big army coming काफी सारे घोड़े और सेना खड़ी थी, on his side उसके साथ खड़ी थी, to fight from his side. ताकि वो लड़ाई कर सके उसके साइड से। Do you see that? क्या आप देख पा रहे हो ये Heaven is चीज there for you. कि स्वर्ग आपके साथ All you है? have to do is आपको सिर्फ एक चीज करनी है, do not fear. डरना नहीं है। Open your eyes of faith. आपके आंखों को, विश्वास की See आंखों from को the eyes खोलना of है, faith. विश्वास के आंखों से देखना No है। matter how dark your pit is, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी अंधकार से क्यों ना भरी हो, how filthy it is, चाहे कितनी भी गंदी क्यों ना हो, how dry it is, कितनी भी खाली या ड्राई क्यों ना हो, do not fear. डरिए नहीं। See from the eyes of faith. विश्वास की आंखों से देखें, See what God is showing you. देखिए जो परमेश्वर आपको दिखाना In चाहता the है। entire story of Joseph, यूसुफ के पूरे कहानी में we see that God was with him आप देखोगे कि परमेश्वर हमेशा यूसुफ के साथ था। in the pit. खड्डे में भी था, When they sold him, जब उसे बेचा गया, he went to Potiphar's house. वो पोटिफर के घर पे गया, There we see God was with him. वहां हम देखते कि परमेश्वर वहां था यूसुफ के साथ, And God was with him that manifested through his life. और परमेश्वर उसके साथ था। वो परमेश्वर ने उसके परिस्थितियों के द्वारा दिखाया खुद को। He found favor in the sight of Potiphar. यूसुफ ने पोटिफर के सामने अनुग्रह को पाया। And Potiphar just gave Joseph everything that he had. पोटिफर ने यूसुफ को अपना सब कुछ उसके हाथ में दे He made दिया। him an overseer of his entire house. पर पोटिफर ने यूसुफ को उन सारी चीजों के ऊपर, उसकी चीजों के ऊपर देखभाल करने के लिए उसे रख So दिया। Potiphar only knew what he was eating on the table. पोटिफर को सिर्फ इतना पता था कि वो टेबल पे खाना क्या खा रहा है, The rest, everything Joseph took care. बाकी हर एक चीज यूसुफ ने उस चीज का ख्याल रखा। Do you see from where God took him and where God brought him? क्या आप देख पा रहे हो कि परमेश्वर ने यूसुफ को किस जगह से उठाया और And why कहाँ this- पर लाया? Why could this happen? ऐसा क्यों हुआ? Because God was with Joseph. ये इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। So in the season of betrayal, इस वक्त जब आपके साथ कोई विश्वासघात करता है, in the season of this shift जब चीजें बदल रही हैं in your life, आपके जीवन में, God was with Joseph during the season. जो यूसुफ के साथ जब विश्वासघात हुआ तब परमेश्वर यूसुफ के साथ था। In the season of temptation, यूसुफ के जीवन में जब परीक्षाएं आई, there also we see that God was with him. हम देखते हैं कि तब भी परमेश्वर उसके साथ था। He was put into the dungeon. जब यूसुफ को उस कैदी के खड्डे में फिर से डाल दिया, By blaming him for causing adultery, उस पे दोष लगाया गया था कि उसने गलत चीजें की है किसी औरत के साथ, and he was put into that dungeon. और जब उसे खड्डे में फिर से डाला गया, Even in that dungeon, we see God was with him. वहां पे जब वो कैदी बन के था तभी भी परमेश्वर उसके साथ था। Yeah. And over there, we see in chapter 39, verse 21, that God showed his mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison.
हम उत्पत्ति 39 चैप्टर में देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को उस जगह पर भी अनुग्रह दिया And the prison keeper handed everything to Joseph. और वहां पर जो देखभाल करता था जगह पर उसने अपनी चाबी यूसुफ के हाथ में दे दी। Can you imagine? क्या आप सोच सकते हो There's a prisoner, कि एक कैदी है and the prisoner is also given an authority और कैदी के पास भी अधिकार दिया गया to है handle everything in the prison. कि हर एक चीज का वो ख्याल रखे उस कैदी वालों की जगह पे। The prison keeper is not getting involved in anything. जो कैदियों का ख्याल रखता है वो कुछ भी नहीं कह रहा। In fact, the prison keeper has kept Joseph to take care of the entire prison. वो जो कैदियों का ख्याल रखता था उसने खुद की चाबी यूसुफ के हाथ में दे दी कि अभी तू ख्याल रख ले। Meaning, in the dungeon, इसका मतलब जब वो कैदी के जगह पर थे even then God gave him a position. उस जगह पर भी परमेश्वर ने यूसुफ को एक स्थान दिया। So we are seeing that even in the dungeon, God was there with him. हम देखते हैं कि उस जगह पर भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था And we are also seeing that Joseph is relying on God for every single thing. और हम देख पा रहे हैं कि यूसुफ हर एक चीज के लिए परमेश्वर पर निर्भर है। When he has to interpret the dreams, when he's doing his work, he is giving God the place. हम देख पाते हैं कि जब यूसुफ को सपने का अर्थ बताना था या कुछ काम करना था तो वो परमेश्वर पर निर्भर था। God was with him and Joseph became successful, he became prosperous, everything he was blessed with. जब परमेश्वर यूसुफ के साथ था तो यूसुफ ने उन्नति को पाया और जितनी भी भली बातें थी वो उसके पास आई। Now in comparison to that, पर इसके साथ जब हम तुलना करें we see God was with him. हम देखते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। But for you and me, पर आपके और मेरे साथ do you know one truth? क्या आप एक सच्चाई को जानते हो That God is in you. कि परमेश्वर आपके अंदर है। When God was with him जब परमेश्वर यूसुफ के साथ था and he was so successful, और यूसुफ ने इतनी उन्नति he पाई, was so prosperous, उसने इतनी उन्नति पाई, he gained so much of wealth, उसके पास काफी सारा धन he आया, gained everything, every blessing, उसके पास सारी आशीषें थी, even though the situations were wrong, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना थी, but he was blessed. पर फिर भी यूसुफ आशीषित था। So when God was with him and this could happen with him, अगर परमेश्वर जब यूसुफ के साथ था और यूसुफ के साथ ये सब हुआ, what about you and me? तो आपके और मेरे लिए क्या? He is in you. वो आपके अंदर है। Christ in you, यीशु मसीह आपके अंदर, the hope of glory. वो आशा है। Amen. आमीन। Those who are led by the Spirit are the sons of God. जो भी पवित्र आत्मा के चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के बच्चे हैं। We have not received the spirit of fear, we have received the spirit of adoption, because of which we can call him Abba Father. हमने भय का आत्मा नहीं पाया है पर परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है। Jesus says, I am in the Father, and you in me, and I in you. यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो। You know, do you understand? क्या आप जानते हो, समझ पा रहे The हो? Father, पिता, Jesus, यीशु मसीह and you और आप are one. एक हो। How much mighty things you should be seeing in your life. आप कितनी अद्भुत बातें अपने Are you जीवन में ready? देखने चाहिए। क्या आप तैयार हो? Are you ready, church? क्या आप तैयार हो? Raise your hands and कलीसिया? say, I am ready, Father. आप हाथ उठा के कहिए कि मैं I know that I तैयार am हूँ। one with you. And I am going to see mighty things in my life. मैं अपने जीवन में काफी अद्भुत चीजें I देखूंगा। am going to experience greater victories. मैं अद्भुत विजय को देखने वाला हूँ Amen. जीवन में। ईमान। You are full of Jesus. आप पूरी तरीके से You're यीशु not मसीह से little भर of गए हो। Jesus. आप में थोड़ा यीशु मसीह नहीं It's है। not that Jesus is just 1% in you. आप में 1% का यीशु मसीह नहीं You है। are full of Him. आप 100% यीशु No मसीह में sickness हो। can rest in you. कोई भी बीमारी No आप में pain रह can नहीं rest in सकती। you. कोई भी दर्द आप में नहीं रह सकता। Nothing wrong can happen with you. कुछ भी गलत आपके All साथ नहीं you हो have to सकता। do. एक चीज आपको करनी है, Know the truth. सच्चाई को जानना Know है। it for yourself. आप सच्चाई अपने लिए जानिए। Acknowledge this, आप ये जानिए, that you and the Father and Jesus are one. आप ये जानिए कि आप पिता और यीशु मसीह एक हो। Know His voice. आप उसके आवाज को जानिए। The person you love, you'll always keep your ears open to that person. जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो उसके लिए आपके कान हमेशा खुले रहेंगे। You will always love to listen to His voice. आप उनकी बातों को हमेशा सुनने के लिए खुश हो जाओगे। If you keep saying, अगर आप कहते रहोगे, I love the Lord, I love the Lord, I love the Lord, अगर आप कहते रहोगे मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, yeah, but you don't want to listen to Him, पर आप उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहते you're not able to listen to Him, या आप नहीं सुन पा रहे हो उसकी are आवाज, you sure you love the Lord? क्या आप सच्ची में परमेश्वर से प्यार करते हो? If you love Him, अगर आप प्यार करते हो if you परमेश्वर know से, your Father, अगर आप पिता को सच में जानते you हो, will hear His voice. आप उसके आवाज को सुनोगे और जानोगे। The sheep knows the voice of his shepherd. एक भेड़ अपने शेपर्ड की आवाज को पहचानता A है। child knows the voice of his father. एक बच्चा अपने पिता की आवाज को पहचानता The है। other day I was out with Adele, उस दिन मैं बाहर थी अपने बच्चे अडेल के साथ and Adele was shopping around.
और अडेल घूम रहा था, शॉपिंग कर रहा था। For almost half an hour, I was not there with him. आधे घंटे तक मैं उसके साथ नहीं थी And all of a sudden, I just came over there. और अचानक से मैं वहां पर आई I hid behind the racks over there in that shop. और वहां पर शॉप में मैं किधर छुप गई And I was just seeing him playing. और मैं उसे खेलते हुए देख रही थी He was very busy. और वो अपने खेलने He में was बहुत बिजी excited था। to see all the toys. वो बहुत उत्साहित था टॉयज देख के। And I just whistled. मैंने सीटी बजाई And he didn't take even a second. और उसने एक सेकंड भी नहीं लिया He told Dada, और उसने अपने पापा से कहा, Mama. उसने कहा मम्मा। He recognized my whistle. उसने मेरे सीटी को भी पहचान लिया। How much more should we recognize the voice of our Father? कितना हमें अपने पिता के आवाज को सुनना और He समझना knew चाहिए। it. उसे पता था That Mama is here. कि मम्मी इधर है, This is the voice of my mother. ये मेरे मम्मी की सीटी है। His father didn't have to tell him. पापा को पता ना नहीं He पड़ा didn't have to उसे, even listen toys. उसे 2-3 बार नहीं सुनना पड़ा, He just knew it at that moment. उसे उसी वक्त पता चल गया। So know your father. आप अपने पिता को जानिए, Sit with him and spend time with him. उसके साथ बैठिए और वक्त You will बिताइए। recognize his voice. आप उसके आवाज को Even जानोगे। when all the distraction is around you, जब बहुत सारी चीजें आपका ध्यान हटा रही है, that enemy showing you colorful distractions, जब शैतान आपको काफी बेरंगी चीजें आपको दिखा रहा है, big toys, बड़े बड़े टॉयज दिखा रहा है, you know, he's showing you the lust of the world, the pride of life, everything around you. जब शैतान आपको जीवन की अभिलाषाएं दिखा रहा है, Just know, listen to his voice. आपको उस वक्त पिता के You will आवाज को never get सुनना है distracted. और आपका ध्यान कभी नहीं You will know हटेगा। what the Father is telling you. आप जानोगे पिता आपसे क्या You'll कह find रहा it है। easy to listen to his voice. आपके लिए बहुत आसान होगा उसकी आवाज सुनना। Amen. Amen. Does it end over there? क्या ये स्टोरी इधर ही खत्म हो जाती है That you heard the voice of God कि आपने आवाज को सुना परमेश्वर की and done. Everything is sorted in your life. और उसके बाद सब अपने आप खुद हो जाएगा? You came to this meeting and there was a prophecy on you. आप इस मीटिंग में आए और एक भविष्यवाणी आपके जीवन पर कर ली गई खत्म, prophecy पूरा हो जाएगा. और उसी वक्त अपने आप प्रोफेसी पूरी हो जाएगी। Does that happen? ऐसा होता है क्या? Does that happen? When you hear the voice of God, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो, it is very important ये काफी महत्वपूर्ण बात है, to obey the voice of God, उस बात की आज्ञा मानना to bring it into action what God is telling you to do. कि परमेश्वर जो आपसे करने के लिए कह रहा है उससे करना जरूरी है। Many times, कई बार this is the place where we fail. इसी जगह पर हम हार मान लेते हैं या हार जाते हैं। We love the Father, हम पिता से प्रेम करते हैं, spending time with Him. उसके साथ वक्त बिताते हैं, God speaks to us. वो हमसे बातें करता है, Prophecies are happening over our life. हमारे जीवन पर भविष्यवाणी होती है, Everything is good. हर एक चीज अच्छी We है, have faith in that prophecy. हमारे पास विश्वास है उस भविष्यवाणी को लेके। But the moment God tells you to do something, बट जब परमेश्वर कुछ करने के लिए आपसे कहता है तो gone. फिर हो गया खत्म। वो हमसे नहीं हो पाता है. वी कांट डू दैट। We don't want to obey. हमको उस बात की आज्ञा नहीं God, माननी you only होती। do everything. हम बोलते हैं परमेश्वर तू सब कुछ कर ले। We have to show that, when you have faith, you have to bring it into action because faith without action is dead. जब कभी भी हमें परमेश्वर के बात पे विश्वास होता है तो उसे क्रिया में बदलना है, क्योंकि विश्वास क्रिया के बिना मरी हुई है। You have to just obey. हमें सिर्फ आज्ञा को मानना है। You may feel, why God is telling me to do this thing? आपको महसूस हो रहा होगा कि सोच रहे हो कि परमेश्वर क्यों बोल रहा है ये करने This के is लिए। something very strange. ये बहुत अजीब सी चीज है, This is not going to help me. ये मेरी मदद नहीं करने वाला। This is exactly opposite to my situation. ये तो मेरे परिस्थिति की एकदम अलग ही बातें हो रही है। My pockets are empty. मेरे जेब तो खाली है, I hardly have a few pennies in my pocket. मेरे पास कुछ थोड़े से पैसे हैं And God is telling me, give this person. और परमेश्वर कह रहा है ये पैसा उस व्यक्ति को दे दे। No. This is not God. This is just my heart. Something from my mind it is coming. हम तब ये सोचते रहे नहीं ये मेरी आवाज है, परमेश्वर की आवाज नहीं है। Should I give? Should I not? हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? Let it be. छोड़ दो। And we don't do it. और हम नहीं करते। See, God handles things very strangely. परमेश्वर चीजों को बहुत अद्भुत रीति से करता है। If you see in the Bible, अगर आप बाइबल में देखोगे, the place where on the mountaintop God was preaching, Jesus was preaching, जब पर्वत पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, He took the 5 loaves and the 2 fishes from that little boy. यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली वो छोटे बच्चे से ली। Can you imagine how mean that is? That little boy has some little food for him. आप ऐसा सोच रहे होगे कि बच्चे के पास छोटी सी रोटी और कितनी कठोर बात है कि यीशु मसीह ने वो भी मांग लिया उससे। So Jesus has told that his disciples, go get that from that boy. तो यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि वो रोटी उस बच्चे से ला ले। Do you see? आप देख पा रहे हो, He took it from him वो चेलों ने वो रोटी ली and he handled the situation in such a way. और यीशु मसीह ने उस परिस्थिति को ऐसे किया, He संभाला, multiplied the food.
वो भोजन को मल्टीप्लाई किया, and not only that boy, और सिर्फ वो बच्चे ने ही नहीं, but all the people there ate sufficiently. वहाँ पे जितने भी लोगों थे उन्होंने भरपेट खाना खाया। He handles everything differently. यीशु मसीह बातों को अद्भुत रीति से संभालता Just है। trust him. उस पे सिर्फ भरोसा करिए। The widow who was in debts, जो विधवा थी जिसके पास पैसा नहीं था, कर्जे में थी, the prophet Elijah goes and tells her that borrow vessels. एलिजा नबी उनसे कहता है कि जो वेसल्स है, ग्लासेस है, वो मांग करा दूसरों से। The person who is already in debts, जो व्यक्ति कर्जे में है, God is telling that person go and borrow vessels और उस व्यक्ति से परमेश्वर कह रहा है कि जा दूसरों से बर्तन मांग के आ and pour oil in it. और उस पे तेल डालना शुरू कर दे। And you know what? और आप जानते हो क्या? That widow never lacked. जो वो विधवा थी उसके पास कभी कमी ही नहीं Though हुई। it was something strange to do, ये काफी अद्भुत सी बात थी, but when she obeyed, पर जब उसने आज्ञा को she माना, never saw lack. उसने कभी घटी को देखा ही नहीं। When Jesus came, the story of Lazarus, यीशु मसीह जब लाजरस की कहानी में आए, when Jesus knew Lazarus was sick, he could have just come and prayed and healed him. जब यीशु मसीह जान गए थे कि लाजरस बीमार है तो वो आके उसे चंगा कर सकते थे, But he came 4 days later पर वो 4 दिन आए लाजरस के मरने के and बाद raised him from the dead. और लाजरस को मरण में से जी उठाया। Jesus is very different. यीशु मसीह काफी अलग है। His thoughts उसके विचार are way beyond our imagination. हमारी सोचों से भी बढ़ के हैं। So don't question when God tells you to do something. तो जब परमेश्वर आपसे कुछ करने Don't के लिए question कहता है him. तो उसको सवाल ना करिए, Just do it. सिर्फ करिए। Just do it. आप कर लीजिए By faith. विश्वास के There द्वारा। is nothing impossible for our God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं It may है। seem impossible for you, but it is not impossible for God. आपके लिए असंभव है पर परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं Do है। you believe it? क्या विश्वास Do करते you believe हो? it? क्या विश्वास करते हो? Amen. Amen. Now in Genesis chapter 50, उत्पत्ति 50 अध्याय में we are coming to the end of Joseph's story. हम यूसुफ की कहानी के अंत में आ रहे हैं। Now we see that Jacob has died over here. हम देखते हैं कि यूसुफ मर गए हैं अभी। From verse 15 onwards, if you read that story, you will see that Jacob is dead now. हम अभी देखते हैं कि याकूब जो उनका पिता था वो अभी मर गया है। Now all the brothers are scared. अभी जो सारे भाई है वो डर गए हैं Now what are we going to do? कि अभी हम क्या करने वाले हैं। The father is dead. पिता तो मर गए। Joseph spared us because our father was alive. यूसुफ ने हमारे जीवन को बचा लिया क्योंकि हमारे पिता जीवित थे। Because the father, because we are his brothers. क्योंकि हम यूसुफ के भाई थे और पिता था इसलिए हम बच गए थे। Now the father is gone. अभी तो पिता चले गए, Something's going to happen now. अभी कुछ तो होने वाला है He is going to use his authority. और अभी यूसुफ अपने अधिकार को इस्तेमाल He will करेगा, use his power. वो अपनी सामर्थ को इस्तेमाल करेगा And it's the end for us. और हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। So what they do? तो भाई क्या करते हैं? Again फिर they conspire. फिर से वो योजना बनाते हैं And they go and tell you, Joseph, और वो यूसुफ को जाके कहते हैं, you know what? आप जानते हैं यूसुफ, Father told us पिता ने हमसे कहा to tell you आपको बताने के लिए to forgive us. कि तू हमें माफ कर ले। Whatever we have wronged against you, हमने जो भी तेरे खिलाफ गलत किया है forgive us. हमें माफ कर ले, Spare our lives. हमारे जीवन को बचा ले। You see, आप देख पा रहे हो, they have seen what God has done in Joseph's life, वो देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में क्या किया है where God has placed him, और परमेश्वर ने उसे किस स्थान पे रखा है, how God has blessed him, कि परमेश्वर ने कितनी आशीषें दी है यूसुफ in को, spite of what we did to him. चाहे हमने उसके खिलाफ कुछ भी क्यों ना किया हो। They have seen everything, उन्होंने सब कुछ देखा है, but still what they are doing? फिर भी भाई क्या कर रहे हैं? Manipulation, वो फिर भी उन बातों को घुमा रहे हैं, conspiring. वो योजनाएं बना रहे हैं। And what is Joseph's reply to this? और यूसुफ ने उनको क्या कहा? He felt bad. यूसुफ को बुरा लगा। If you just read that verse over there, that after they told him that the father's dead and the father told us that, don't do anything, spare their life, forgive them, Joseph wept over there. जब उस वचन में आप पढ़ोगे कि जब भाइयों ने ये बातें यूसुफ को बताई तो यूसुफ रोने लगा। He didn't cry because the father told him to forgive. यूसुफ इसलिए नहीं रो रहा था क्योंकि पिता ने कहा उन भाइयों को माफ कर ले। He was crying because यूसुफ इसलिए रो रहा था my brothers still haven't changed. कि मेरे भाई अभी भी बदले नहीं हैं, They're still the same. वो वैसे के वैसे ही है। Why? क्यों ऐसा? But then in verse 19 we see और 19 वचन में हम देखते हैं the heart condition of Joseph. कि यूसुफ के हृदय की परिस्थिति कैसी थी। Joseph asked them, यूसुफ ने उनसे पूछा,
Fear not. उसने कहा मत डरो, Am I in the place of God? क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? Verse 20. 20 वचन, But as for you, all of you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है। Do you see? आप देख पा रहे हो? All I see over here, मैं इस वचन में ये देखती हूँ, humility नम्रता देखती हूँ। in Joseph's life. यूसुफ के जीवन में He had the authority, यूसुफ के पास अधिकार था, he had the power. उसके पास सामर्थ था, He didn't have his father sitting on top of him. उसके पास पिता नहीं था जो उसके सर पे बैठा था। He could do anything he wanted. यूसुफ कुछ भी कर सकता He था। was second in command in that place. उस वक्त पे यूसुफ के पास काफी सामर्थ थी, But did he do that? पर क्या यूसुफ ने उन्हें कुछ गलत किया उनके साथ? What did he show? यूसुफ ने क्या दिखाया? He showed genuine care. उसने परवाह को दिखाया, He showed humility. उसने नम्रता को He दिखाया। didn't come in the place of God. वो परमेश्वर की जगह पर नहीं आया। The word says that vengeance is mine. वचन कहता है कि किसी से बदला लेना वो मेरे हाथ में है। परमेश्वर कहता है, Vengeance is not ours. परमेश्वर कहता है कि किसी से बदला लेना वो हमारे हाथ में नहीं है। What to do with that evil person, what to do with what wrong people have done to me, that is God's lookout. वो बुरे लोगों के साथ जिसने आपके साथ बुरा किया है, उनके साथ क्या करना है वो परमेश्वर के हाथ में है। Let him handle it. उससे देखने दीजिए ये Don't बातों fall को। into that. आप वो बातों को नहीं लीजिए हाथ में। Just stay in your position. आप आपके स्थान पे बने रहिए। Know that you are his child. आप जानिए कि आप परमेश्वर के बेटे हो। Stay in humility आप नम्रता में बने रहो and do what the Lord says. और वो करे जो आपको परमेश्वर ने करने के लिए You कहा will है। never fail. आप कभी भी नहीं हारोगे। You will never fail. आप कभी भी नहीं हारोगे। No matter how evil what the most devilish thing that the evil is planning against you. चाहे कितनी भी बुरी बातें शैतान ने आपके खिलाफ क्यों ना वो योजनाएं करे हो, Enemy is telling you that you are drowned in the depths. शैतान कह रहा होगा कि शायद आप कर्जे में डूब जाओगे। नहीं निकल सकते हो बाहर. यू विल नेवर कम आउट ऑफ इट। No, that's not happening. वो नहीं होने वाला। God is going to make you a person who lends. परमेश्वर आपको ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो राज्य करता Do है। you believe that? क्या आप विश्वास करते हो? Enemy is thinking that this sickness is going to kill you. शत्रु ये सोच रहा है कि ये बीमारी आपको मार डालेगी, But no, पर नहीं। Jesus has healed you. पर यीशु मसीह ने आपको चंगा किया And है God is going to change your life into a living testimony. और परमेश्वर आपके जीवन में गवाही को ठहराएगा And this is going to save many. और ये गवाही काफी लोगों को बचाएगा। As in Joseph's story, जैसे यूसुफ की कहानी में we see, हम देखते हैं, he said in verse 20, वो 20 वचन में कहा उसने, whatever you tried to do evil against me, God turned it into good. जो भी तुम लोगों ने मेरे खिलाफ बुरे के लिए सोचा था, परमेश्वर ने उसको अच्छे के लिए बदल दिया। To bring to come to pass as it is to this day. To save much people alive. जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। So your life is going to be a blessing to many. आपका जीवन काफी लोगों के लिए Receive it. आशीर्वाद होने वाला है। Declare it over yourself. इसे ग्रहण कीजिए और इसका घोषणा कीजिए आपके जीवन पे। No matter how ruined your life is, चाहे आपका जीवन अभी कैसा भी क्यों ना हो, your God is able to rebuild it. कि परमेश्वर उससे फिर से बना सकता Amen. है। आमीन। Just listen to the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनिए, Hold on to his promises. उसके वचन को पकड़ के रहिए। When you are in the lowest situation of your life, जब आपके जीवन में आप नीचे स्तर पे हो, hold on to his promises. परमेश्वर के वचन को पकड़े Be रहिए। steadfast in your faith. आपके विश्वास में बने रहना। And when you are at your highs, और जब आप ऊंचे के स्तर पे रहोगे जीवन में, stay in humility. तब भी नम्रता में रहना। The moment pride enters, जिस वक्त घमंड आएगा, it will kill your purpose. आपके जो उद्देश्य को वो मार डालेगा। Pride is the destruction. जो घमंड है वो चीजों को बर्बाद कर देता है। So never go in pride. कभी भी घमंड में नहीं जाना, Stay in humility नम्रता में बने रहना and listen to his voice. और परमेश्वर की आवाज को सुनते रहना। I would like to share a testimony with you. मैं गवाही को आपसे बताना चाहती हूँ। A lady whom I know. एक लेडी है जिनको मैं जानती हूँ। She was the only one from a family who got saved. वो अपने परिवार में एक लौती थी जिसने उद्धार को पाया था। During her teens, after her graduation, जब वो कॉलेज में थी उसके बाद she used to have these migraine headaches, उसको सिर दर्द काफी बहुत ज्यादा होता था, माइग्रेन पेन होता था, terrific migraines. बहुत बुरी तरीके से पेन था। She went to every doctor.
वो हर डॉक्टर के पास गई, Every remedy she tried, whatever people suggested her. जो भी इलाज था उसने सब किया, Nothing worked. कुछ भी काम नहीं किया, Nothing, absolutely nothing worked for her. कुछ भी नहीं काम किया उसके लिए। One day she just came in touch with a sister, एक बार वो एक बहन से मिली and the sister brought her to church. और वो बहन ने उस लेडी को कलीसिया लेकर आई। वो And there was nobody to actually guide her, tell her, pray for her. कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे बता सके क्या करना है, कैसे करना है। She used to just go and sit over there in the church, वो कलीसिया में जाके सिर्फ बैठ जाती थी in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। She was very new. She doesn't know how to pray, how to fast. She knows nothing. वो नई थी, उन्हें प्रार्थना करना, वचन पढ़ना कुछ नहीं आता था। The only thing she knows is when if I come here, I will be healed in this presence. उनको सिर्फ ये बात पता थी, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आऊंगी तो चंगाई को पाऊंगी। So she went there for a week, तो वो एक हफ्ते के लिए कलीसिया गई। and after that, उसके बाद her headache went away forever. जो उनका सिर दर्द था वो पूरी तरीके से गायब हो गया। You see, आप देख पा रहे हो, just the presence of God सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति healed her completely. पूरी तरीके से चंगाई दे She दी। gave her life to Jesus. वो बहन ने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया And her entire family, one by one, they gave their lives to Jesus. और उसके द्वारा एक एक करके उसके परिवार में सब लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। Now this woman got married. अब ये जो बहन थी उनकी शादी हो गई, She moved to her in-laws' place. वो अपने ससुराल में जाके रहने लगी And right after a year of marriage, she conceived. और एक साल के बाद उन्हें वो कंसीव कर ली। Yeah, she conceived, and it was her first trimester. और जब उन्होंने गर्भ धारण किया, जो पहला 3 महीना था, She suddenly started to bleed. और खून बहना शुरू हो गया उनमें They से। took her to the doctors. उन्होंने उनको डॉक्टर के पास लेके गए They told her, और उस बहन को बताया, "We are very sorry. हम सॉरी कहते हैं बहन आपको, Your baby boy is no more. आपका जो बच्चा था अभी वो जिंदा नहीं You have है, miscarried." आपका बच्चा अभी नहीं है। She was shattered, totally shattered, जो बहन थी उनका दिल पूरी तरीके से टूट गया। feeling that I have received Christ. उसने ये सोचा कि मैंने मसीह को तो पाया है, Everything is fine with me. मेरे साथ तो सब ठीक है, I have done everything right, मैंने सब सही किया है, and I'm still in this और state. और फिर भी मैं इस परिस्थिति में हूँ। After a year, एक साल के बाद she conceives again. उन्होंने फिर से गर्भ धारण किया। This time again, it is the 3rd or the 4th month. अभी ऐसा था कि वो तीसरे या चौथे महीने में थी Again, the same story. और फिर से उनके साथ ये हुआ, She starts bleeding. फिर से खून बहना शुरू हो गया She goes to the hospital. She's miscarried. और उनको पता चला अभी बच्चा पेट में नहीं है, The baby is no more. बच्चा अभी जिंदा नहीं है। And the doctors tell her it was a boy. और डॉक्टर ने कहा कि वो एक लड़का था। Again, फिर से उनका दिल टूट गया, totally broken. दिल टूट गया उनका पूरा। Again, the next time, और अगली बार जब हुआ, she yet conceives. उन्होंने फिर से गर्भ धारण किया। Now she's 6 months pregnant, अभी वो 6 महीने उनके पेट में बच्चा है and she starts coughing. और उन्होंने खांसना शुरू किया, Terrible cough. बहुत बुरी तरीके से खांसना शुरू किया। Bedridden. वो बेड पे ही लेटी हुई थी। They brought her from her in-laws' place to her house. उन्होंने उनको ससुराल की जगह से उनके मायके की जगह पर लेकर आए When they checked her, और जब उनका चेक किया the doctor said she has infection in her lungs, और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया and the है baby in her womb और जो बच्चा उनके गर्भ में है, has turned bluish green. बच्चे का कलर ब्लू और ग्रीन हो गया है। If she keeps the baby, अगर वो बच्चे को रखे रहेगी she will die. वो मर जाएगी, Nor the baby will survive, बच्चा भी नहीं रहेगा, nor will she survive. वो खुद भी नहीं रहेगी। They had to abort the baby. बच्चे को डॉक्टर्स को निकालना पड़ा। Can you even imagine what that woman must be going through? क्या आप सोच पा रहे हो कि वो स्त्री के साथ क्या क्या हो रहा होगा? Now it is the 4th time अभी चौथी बार है, she yet conceives, उन्होंने फिर से गर्भ धारण किया। and this time she has a full-term baby, अभी ऐसे हुआ कि बच्चा पूरा पैदा हो गया था and it's a baby boy. और बच्चा लड़का था She finally thought that she's got a boy. और उन्होंने सोचा कि अभी मुझे मेरा बेटा मिल She's गया। happy. वो खुश थी She gave birth in the night. और उन्होंने रात में बच्चे को ये दिया, डिलीवरी किया। The next morning when she woke up, जब अगली सुबह वो उठी, the baby was dead. बच्चा मर गया था। Doctor said he didn't survive. डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चा रह नहीं पाया, वो मर गया। It was just some water that the baby had gulped in. ऐसा हुआ था कि बच्चे ने वो पानी को पी लिया था अंदर, His lungs were full. लंग्स बच्चे के भर गए थे, They couldn't save him. तो डॉक्टर्स बच्चे को बचा नहीं पाए। So now this woman has lost 4 of her baby boys.
वो स्त्री ने अपने 4 बेटों को खोया था and she's in a terrible state, और उनकी स्थिति बहुत खराब थी। helpless. उनके पास कोई मदद नहीं थी। She thinks like, why am I even alive? वो ये सोच रही थी मैं जिंदा भी क्यों हूँ। But then she happens to come to Pune, पर वो पूना सिटी आई। and over there she meets one of the sister, पूना सिटी में उन्होंने एक बहन से मुलाकात की। the same sister who took her to church, वही सिस्टर थी जो उन्हें चर्च लेकर आई थी। and that sister told her, और वो बहन ने उनसे कहा, all you got to do this time, इस बार बहन आपको एक चीज करनी है, just lay your hands on your stomach, आपके हाथ को आपके गर्भ पे रखिए, speak to yourself, आप खुद को बोलिए, declare over your baby. घोषणा कीजिए आपके बच्चे के ऊपर। Deuteronomy 28:4. व्यवस्था विवरण 28:4 I will bless the fruit of your womb, says the Lord. कि मैं तेरे गर्भ के फल को आशीष दूंगा। So this is what she did the entire 9 months. तो वो स्त्री ने, वो बहन ने पूरे 9 महीने सिर्फ ये किया। She kept her hand on her stomach उन्होंने अपना हाथ अपने गर्भ पे रखा and she just said this one line, और उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन कहा, Lord, परमेश्वर this is your word. ये आपका वचन है। Deuteronomy 28:4. व्यवस्था विवरण 28:4 I bless the fruit of my womb. मैं अपने गर्भ के फल को आशीषित करती हूँ। Every single day she did it this. हर एक दिन वो बहन ने ये किया, Only this. सिर्फ ये किया। In the 6th month, 6वें महीने में she goes for a regular checkup वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। and the doctor says there are some complications, डॉक्टर्स कहते हैं कि चीज़ें थोड़ी सही नहीं हैं, but we'll give you some treatment. पर डॉक्टर ने कहा हम ट्रीटमेंट करेंगे इस चीज़ का। They did some internal treatment डॉक्टर्स ने उनको ट्रीटमेंट किया अंदर से and told her to take bed rest. और कहा कि आप बेड पे रेस्ट करो। But this woman, पर ये स्त्री जो थी, this woman of faith, ये विश्वास की जो स्त्री all थी, she did, एक चीज उन्होंने की, even in that state, उस परिस्थिति में भी on the bed बेड के ऊपर for the 9 months. पूरे 9 महीने। Deuteronomy 28:4. व्यवस्था विवरण 28:4 I bless the fruit of my womb. मैं अपने गर्भ के फल को आशीषित करती हूँ। And then this woman had a baby, और उन स्त्री को फिर से बच्चा हुआ, a living baby. एक जिंदा बच्चा। 26 years later, 26 साल के बाद that woman's baby, वो व्यक्ति के जो बच्चे हैं, her daughter, उनकी जो बेटी है, stands in front of you, वो आपके सामने खड़ी है, glorifying God. परमेश्वर की महिमा कर रही है। So this is the living testimony that I want to share with you. ये एक जिंदा गवाही है जो मैं आपके साथ बांट रही My हूँ mother आज। didn't know the word so much. मेरी माता को वचन पता नहीं था, She didn't know what to do. उसे नहीं पता था क्या करना है। She was not that spiritual. वो इतनी आत्मिक थी नहीं, All she knew was just one promise. उनको सिर्फ एक ही वचन पता था, I bless the fruit of my womb. मैं अपने गर्भ के फल को आशीषित He करती will हूँ, bless and multiply you. मेरे को वो फलेगा और मैं फूलूंगी। This is what she knew. वही सिर्फ उन्हें पता था And she just declared that promise over her life. और उस चीज की घोषणा उन्होंने अपने जीवन पर Even though की। the reports, her situation, everything went against her. उनकी रिपोर्ट, उनकी परिस्थितियां उनके खिलाफ खड़ी थी। So you see, आप देख पा रहे हो, just that promise of God. सिर्फ वो परमेश्वर का एक वचन। Our God is not a liar. हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। The promises that He has given जो वचन उसने आपको दिए हैं, to all the people in the Bible, जो सब लोगों को उसने वचन दिए हैं, to us, जो हमें दिए they हैं, all are true. वो सब सच्चे They are हैं। living. वो जिंदा है, It is not dead. वो मरे हुए नहीं We हैं। don't serve a dead God. हम मरे हुए परमेश्वर की सेवा नहीं करते। Even though we can't see, चाहे हम कुछ देख भी नहीं पा रहे हो, we can't see that He is working. हम शायद नहीं देख पा रहे हो परमेश्वर को काम करते We don't हुए, realize how He is working. हम नहीं समझ पा रहे कि वो काम कैसे कर रहा है, How is everything going to change? सब कैसे बदलेगा। Just stand in faith on the promise of God. विश्वास के द्वारा उस वचन पे खड़े He is रहिए। able वो सामर्थी and है He is still working. और वो अभी भी काम कर रहा Know है। this, आप ये जानिए that He is a way maker. कि वो रास्ते बनाने वाला परमेश्वर He है, is a miracle worker. कि वो अद्भुत चीजें करने वाला He परमेश्वर is है, a promise वो keeper. अपने वचन को रखने वाला परमेश्वर He है। will not let His word fall down. वो उसके वचन को कभी खाली नहीं छोड़ेगा। His word and His promises will never change. उसके वचन कभी भी खाली होंगे और कभी चेंज नहीं He होंगे। is the same yesterday, वो कल वैसा He था, is the same today, वो आज भी वैसा है and tomorrow. और कल भी वैसा He is the रहेगा। same. वो वैसा ही We सेम serve a परमेश्वर living है। God. Hallelujah. हम एक जिंदा परमेश्वर की आराधना करते Hallelujah. हैं।
Let's all just stand in our places today आइए हम खड़े हो जाए अपने स्थान पे, and let's just give our heart to Jesus. अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में Let's दीजिए। just tell him, आइए उसे कहिए, we are sorry, Lord. परमेश्वर हमें माफ कर दे, We have just so much underestimated you. हमने तुझे काफी छोटा समझा, We didn't know who we are in Christ. हम नहीं जान पाए कि हम परमेश्वर में कौन है, We didn't know our identity. हम खुद के पहचान को नहीं जान पाए। We were just thinking हम ये सोच रहे थे, that if I do good works, good will happen to me. हम ये सोच रहे थे कि हम अच्छा करेंगे तो ही अच्छा आएगा, But we didn't understand. पर हम नहीं समझ पाए It is not our good works, कि हमारे अच्छे काम नहीं है, but it is your goodness. पर ये आपकी अच्छाई है It is परमेश्वर। because you choose to love us. इसीलिए क्योंकि तूने हमसे प्यार किया It is परमेश्वर। because it is your character to be faithful. ये तेरी कैरेक्टर है प्रभु कि तू विश्वास योग्य है, That is why you have loved us. इसीलिए तूने हमसे प्रेम किया And you are there with us. और तू हमारे साथ है। And you are not only there with us, और सिर्फ तू हमारे साथ ही नहीं, you are inside us. तू हमारे अंदर भी है। You are inside us. You fill us. तू हमारे अंदर है और हमें भरता है। And everything that we have lost, और जो चीज हमने खोली, everything that we have lost, हर एक चीज जो हमने खोली है, God will restore it. परमेश्वर उसे फिर से We know लौटा He is going to रहा है। restore it. हम जानते हैं वो फिर से लौटा रहा है, Just as He restored it in Joseph's life. जैसे यूसुफ के जीवन में फिर से सब चीजें लौट When he आई। came to Pharaoh's house, जो वो फिरौन के घर में आया, Pharaoh gave him a new robe. फिरौन ने उसे नए वस्त्र दिए, Pharaoh gave him a signet ring. फिरौन ने उसे एक अंगूठी दी। Do you know what the ring signifies? आप जानते हो अंगूठी क्या बताती है? Authority, अधिकार, power. सामर्थ। And God blessed him with everything. और परमेश्वर ने हर चीजों से Everything यूसुफ that को he lost, आशीर्वाद God किया। replaced. जो भी यूसुफ ने खो लिया था उसे फिर से लौटा Restored दिया, it. उसे फिर से लौटा दिया। The Father is waiting for you, पिता परमेश्वर इंतजार कर waiting for रहा you है, to turn back. आपका इंतजार कर रहा है मुड़ने के And you लिए। see, और आप देखोगे, You will testify आप गवाही दोगे restoration. कि परमेश्वर ने लौटा You दिया। will testify restoration in your life. आप गवाही दोगे परमेश्वर ने लौटा दिया। Everything that you have lost, हर एक चीज जो आपने खोली है, everything that the enemy has stolen, हर एक चीज जो शत्रु ने आपसे ले ली I है, declare restoration over your मैं life. घोषणा करती हूँ वो चीजें लौट आ रही है। In every area, हर क्षेत्र में, your आपके जीवन में, finances, आपके पैसों में, your health, आपके शरीर में, your mental health, आपके मेंटल स्वास्थ्य में, physical health, आपके फिजिकल हेल्थ में, your financial health, आपके फाइनेंसेस में, everything, हर एक चीज, everything, हर एक चीज God is restoring. परमेश्वर लौटा रहा है। He is here today वो आज इस जगह पर है to reconcile you with the Father. आपको फिर से परमेश्वर के साथ एक करने के लिए। Just give in. आपके हृदय को उसे Just tell him, दीजिए। yes, Lord, आप उसे कहिए, हाँ I am परमेश्वर, here मैं यहाँ पर हूँ, and ready to obey, मैं आज्ञा मानने के लिए तैयार ready to हूँ, listen, तेरी बातें सुनने के लिए तैयार ready to हूँ, intentionally choose मैं तैयार हूँ वो चुनाव करने के to लिए, love you, तुझे प्यार करने के to लिए, intentionally choose you तुझे चुनाव करूंगा प्रभु तेरा over every situation. हर एक परिस्थिति के ऊपर। Through my darkest nights, मेरे जो अंधकारमय रातें थी, in spite of my brokenness, चाहे मैं कितनी भी टूटी हुई परिस्थिति में I क्यों will ना choose हूँ, you, Lord. मैं तेरा चुनाव करूंगा। I choose you, मैं Father, तेरा चुनाव करूंगा पिता। and I stand in the identity that you have given me, मैं अपनी पहचान में रुका हूँ जो तूने मुझे दी है, not what people say about वो me, नहीं जो लोगों ने मेरे लिए कहा है, what you say about me. जो तू मेरे लिए कहता That है, matters the most. वो सबसे महत्वपूर्ण Amen. है। Amen। That miracle worker is here. वो अद्भुत चीजें करने वाला यहाँ पर है। He's not left you alone. उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा My है। dear people of God, you are not alone. परमेश्वर के लोग, आप अकेले नहीं हो। You may not show it on your face. आपके चेहरे पे शायद नहीं दिखा रहा हो, You may not tell your husband. आप आपके पति को शायद नहीं बता रहे You रहोगे, may not tell your mother. आपके शायद मम्मी को ये बातें नहीं But पता, somewhere inside, पर आपके हृदय में you're saying, God, I'm so alone. आप कह रहे हो परमेश्वर मैं तो अकेला हूँ, I'm feeling so helpless. मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई मदद नहीं है। But I want to tell you today, God is telling you that I am there with you. परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ And I'm working for you. और मैं आपके लिए काम कर रहा I'm हूँ। constantly thinking about you. मैं हर बार आपके लिए सोच रहा हूँ, I'm cherishing in you. मैं आप में आनंद ले रहा Oh, हूँ। the Father loves you, church. Do you realize? पिता परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। Even if you don't see it, अगर आप देख भी नहीं पा रहे रहोगे, He is still working. वो फिर भी आपके जीवन में काम कर If you रहा don't है। feel it, अगर आप नहीं देख पा रहे हो, He is still वो working. फिर भी काम कर रहा है। He is still at move in your life. वो फिर भी आपके जीवन में है। It is not the end. वो खत्म नहीं हो गया है। From the pit to the palace, that is not the end for us. आपके लिए खड्डे से लेके पैलेस में जाना सिर्फ इतना जीवन नहीं है। From the pit, वो खड्डे में से He is picking us up वो आपको उठा रहा है and
giving us the purpose of life. और आपको उद्देश्य दे रहा है। He is fulfilling His purpose in our life. वो अपने उद्देश्यों को आपके And जीवन he में will पूरा do कर it. रहा और वो करेगा। He will do it वो करेगा because He is able. क्योंकि उसमें सामर्थ है। Amen. आमेन।